اور نیوز 18 اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی خوشخبری کے ساتھ اب ہم اسپیڈ نیوز کا رخ کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں جموں کشمیر اور لداخ کی خبروں سے۔ کپواڑہ ضلع کے کرنا میں گزشتہ سال بڑے پیمانے پر منشیات اور ہتھیار ضبطی کیس میں NIA نے 9 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ بارہمولہ کی خصوصی NIA عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ منشیات اور ہتھیار ضبطی کیس میں 6 ملزمین پولیس کی حراست میں ہیں، جبکہ پاک مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ان کے 3 آقاؤں کے خلاف بھی چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر سید بشارت بخاری کا کہنا ہے کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بے مطلب کے بیانات سے عوام کے ذہنوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو سے بات چیت میں سابق وزیر نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کے نام پر PAGD عوام سے ووٹ تو مانگ رہی ہے اور دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر وہ اپنی باتیں ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حد بندی کمیشن پر سید بشارت بخاری نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں ضلع بارہمولہ کے گوئیگام کنزر سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ نوجوان محمد یونس کی ایک سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ یونس کی موت کی خبر سنتے ہی گوئیگام کنزر میں صف ماتم بچھ گئی۔ یونس کے گاؤں میں ہر ایک آنکھ پرنم ہے۔ یونس محمد سعودی عرب کے شہر گیزان میں قائم الامان کمپنی میں گزشتہ 5 برسوں سے کام کر رہے تھے۔ یونس محمد کی شادی عید الفطر کے بعد ہونے والی تھی، جس کی تیاریاں گھر والوں نے مکمل کی تھی۔ یونس کو عید کے بعد اپنے گھر واپس لوٹنا تھا۔ یونس محمد کے لواحقین اور علاقے کے لوگوں نے وزیر خارجہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی کہ یونس کی لاش کو سعودی عرب سے کشمیر واپس لانے میں مدد کی جائے تاکہ آبائی مقام پر ہی ان کی تجہیز و تکفین ہو سکے۔ بجلی کی بگڑتی ہوئی صورتحال UT انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بن رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس معاملے پر LG انتظامیہ کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ یوتھ نیشنل کانگریس کے کارکنوں نے جموں میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ بجلی مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے شہریوں سے بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، تاہم یہ وعدے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے سٹی سینٹر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ جموں کشمیر میں بجلی اور پانی کی قلت کے بحران کے چلتے عوام کو بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی کمی کے خلاف کانگریس کی جانب سے بس اسٹینڈ رامبن میں مظاہرہ منظم کیا گیا۔ مظاہرے میں جموں کشمیر یوتھ کانگریس صدر سمیت سابقہ کانگریس پارٹی ورکران اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ یوتھ کانگریس صدر فیروز خان نے کہا کہ ماہ سیام اور نوراتری کے دوران جموں کشمیر حکومت بجلی مہیا کرانے میں ناکام رہی۔ وہیں سابقہ ضلع صدر ارون سنگھ راجو نے کہا حکومت اگر بجلی پانی کی سہولت بحال کرنے میں ناکام رہی تو وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں گے۔ لوگوں نے DC آفس ڈوڈا کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے PDD کے خلاف شدید احتجاج درج کرایا۔ مظاہرین کے مطابق ماہ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت PDD والے عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ بجلی کے بحران کے چلتے عوام میں شدید ناراضگی۔ ان لوگوں نے کہا سب سے زیادہ پاور پروجیکٹ وادی چناب میں موجود ہیں، لیکن مقامی لوگوں کو آج تک ان پروجیکٹ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ اسی بیچ ACR ڈوڈا نے احتجاجیوں سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ بجلی کی کٹوتی کی وجہ سے لوگوں کو ہو رہی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس پر ان مظاہرین نے اپنا احتجاج پرامن انداز میں ختم کیا۔ ضلع گاندربل میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں آرمی کا ایک اہلکار فوت ہو گیا۔ گنیون میں آرمی کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک فوجی جوان ہلاک ہو گیا، دیگر 2 زخمی ہوئے۔ دونوں زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ DPS جموں کی بس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ DPS اسکول کے احاطے میں ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کے فوری بعد وہاں قریب میں کھڑی دیگر بسوں کو فوری ہٹایا گیا۔ بس آگ کی نظر ہو گئی۔
जम्मू के एक आरटीआई कारकुन बलविंदर सिंह का इल्जाम, गवर्नमेंट ई मार्केट सिस्टम के जरिए खरीदारी करते हुए कुछ ऑफिसर्स बदउनवानी कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया, शफाफ तरीके से खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने ये निज़ाम मुतारिफ कराया था। जम्मू कश्मीर में कुछ अफसरान इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके गैर कानूनी उमूर आरटीआई के जरिए सामने आए हैं। आरटीआई कारकुन ने एलजी से अपील की कि वो ई मार्केट सिस्टम बदउनवानी की सीबीआई जांच का हुक्म दे। श्रीनगर के बाजारों में ईद की कोई खरीदारी होती नजर नहीं आ रही। पूरे कश्मीर में कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। श्रीनगर में गोश्त और बेकरी की दुकानों पर लोगों की कुछ भीड़ तो है, लेकिन बाकी बाजारों में कुछ खास कारोबार नजर नहीं आ रहा। लाल चौक और दीगर बाजारों में ईद के मौके पर धरने की जगह नहीं रहती थी, तिल धरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज यहां आम दिनों की तरह हल्का फुल्का रश ही देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि कोविड के बुरे हालात के बाद ये पहली ईद है जब पाबंदियां आयद नहीं है। खरीदारों की जेब पर कोविड ने कारी ज़रब लगाई है, हर जगह उसका असर देखने को मिल रहा है। उधर उलमाए दीन ईद पर असराफ से परहेज करते हुए मुफलिसों की मदद की तलकीन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ऑफिसर्स की एक मुश्तरका मीटिंग में ईद उल फित्र के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लिया, इसे हतमी शक्ल दी। डीसी ने जिले की तमाम जामा मसाजिद, ईदगाहों और दीगर इलाकों में साफ सफाई की भी खास हिदायत दी। मीटिंग में मुतादिद मसाइल खुसूसन मुकर्ररा मुकामात पर पानी की फराहमी, बिजली की बिला तातुल फराहमी, राशन की मुनासिब फराहमी, खाने पीने की अशिया के मयार और नरखों की जांच के अलावा ईद के दौरान मुनासिब साफ सफाई जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। खाने पीने की चीजों में बड़े पैमाने पर मसनूई रंगों का इस्तेमाल करने पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। बच्चों की सेहत पर भी इसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की चेकिंग के दौरान मिठाई की दुकानों, बेकरियों और दीगर कारखानों से मसनूई रंग की भारी मिक़दार बरामद की गई। डॉक्टर्स का मानना है कि खाने पीने की चीजों में मसनूई रंग से मेदे की बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा रहता है। बारामूला में डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा, यूटी के एस्पिरेंशियल अजला में से बारामूला एक है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने जिले को अवार्ड दिया है और अवार्ड की रकम का इस्तेमाल इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर मौके पैदा करने के लिए किया गया। सफीना बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों का तफसीली खाका पेश किया। कहा कि जिले में 300 से ज्यादा मशरूम यूनिट्स कायम किए गए, जबकि किसानों को 15,000 सॉइल कार्ड जारी किए गए। पुंछ की मंडी तहसील के कई अफराद पीडीपी में शामिल हो गए हैं। पीडीपी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और बीडीसी चेयरमैन शमीम अहमद गनाई ने लोगों का पार्टी में खैर मकदम किया। पीडीपी में शामिल कारकुनों ने कहा कि पीडीपी ही वाहिद पार्टी है जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही है। 4 लेन तामीराती कंपनी सीपीपीपीएल में काम करने वाले वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर बानेहाल में एहतजाजी मुजाहरा किया और काम बंद कर दिया। वर्करों ने कहा, कंपनी ने लेबर कवानीन की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। यहां काम करने वाले वर्करों को निहायत ही कम उजरत दी जा रही है। एहतजाजी वर्करों का कहना है कि तामीराती कंपनी सीपीपीएल बैरून रियासतों से वर्करों को लाकर यहां मुलाजमतें दे रही है, जबकि यहां काम करने वाले मकामी वर्करों और इंजीनियरों को बर्खास्त किया जा रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशेरा में कौमी परचम की मुबैना बेहुरमती मामले में लोगों ने एहतजाज किया। इसी बीच एएसपी नौशेरा ने कहा कि इस वाक़े के मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। एएसपी के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। इक्वट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग के तीसरे एडिशन की तैयारी की जा रही है। आईपीएल की तर्ज का ये टूर्नामेंट होगा। 10 टीमों और तकरीबन 130 खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। केपीपीएल के मुंतजिम अंकुर से न्यूज़ 18 से खास बातचीत में लोगों से इस इवेंट को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की।
बैनुल-अक़वामी डांस डे की मुनासबत से गुरेज में फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल दावर में एक इंटर स्कूल डांस मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें गुरेज के मुख्तलिफ स्कूलों के 47 तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैनुल-अक़वामी डांस डे के मौके पर तलबा को शिरकत के लिए इनामात से नवाजा गया। जीतने वालों को खुसूसी इनामात और असनाद से नवाजा गया। तलबा और दीगर स्कूल इंतजामिया की तरफ से उसे सराहा गया। इस तरह के मुकाबले बाकायदगी से मुनक्किद कराने पर जोर दिया गया। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा की जानिब से तहसील ऑफिस अवंतीपुरा में शजकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया। पीडीसी चेयरमैन अब्दुल अहद और नायब तहसीलदार अवंतीपुरा एजाज अहमद ने इसका इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल अहद ने बताया कि शजकारी मुहिम में अवाम को भी बढ़ चढ़ कर शमूलियत करनी चाहिए और माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने की। इस मौके पर बाग मालिकान को पैदावार बढ़ाने के लिए महकमे के साथ हमेशा राब्ते में रहने की सलाह दी गई। कस्बा पामपुर में आर्जी तौर पर मुकीम राजौरी की खाना बदोश लड़की को माली मदद की जरूरत है। जोया शमीम यासीन नामी इस लड़की की दोनों आंखों का ऑपरेशन करना लाजमी है। ऑपरेशन के लिए दरकार रकम उनके पास मौजूद नहीं। तहसीलदार नाराबल गुलाम मोहम्मद डार अपनी नौकरी से सुबकदोश हो गए हैं। जिला इंतजामिया बडगाम ने गुलाम मोहम्मद की 38 साल सर्विस और उनकी गैर मामूली खिदमात को सराहा। नाराबल तहसील ऑफिस से मुलाजमीन ने उन्हें पूनम आंखों से रुखसत किया। डोडा टाउन में फोर्सेस ने बड़ा फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके के तुलौज में बढ़ती हुई सियासी समाजी सरगर्मी और मजहबी और सीजनल तकरीबात के तनाजुम में फ्लैग मार्च किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसपी के अलावा दीगर फोर्सेस के दस्ते और 400 अफसरान इसमें शामिल रहे। एसएसपी डोडा ने ईदगाह डोडा और जामा मस्जिद का भी दौरा किया और ईद उल फित्र के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। भदरवा और किश्तवाड़ कैंपस के एनएसएस यूनिट ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ताउन से भदरवा में एक रोजा योगा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें योगा माहिरीन ने सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए योगा की ट्रेनिंग पर जोर दिया। सब डिवीजन बानेहाल में फौज मकामी नौजवानों के लिए रोजगार की राहें तलाश कर रही है। यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी में हेल्थ केयर एंड करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ की जानिब से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक प्री लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसमें बैंकों से जुड़े 250 मामले शामिल किए गए। 60 मामलात को मौके पर हल करते हुए बैंकों का लोन लेकर डिफॉल्ट करने वालों से लाखों रुपए वसूल किए गए। कठुआ पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग पर कार्रवाई करते हुए इस स्मगलर को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से नशीली दवाओं की 26,000 बोतलें बरामद हुई। ट्रोमा डॉल कर 20,000 और अल्प्राजोलम की 6,000 बोतलें मिली हैं। कठुआ पुलिस को कोरेक्स और दीगर दवाओं की बोतलें भी दस्तयाब हुई। ये सारी खेप कोरियर के तवस्सुस से मंगवाई गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। मुनासिब कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया गया है। पुंछ में गुज्जर बकरवाल ट्राइबल फाउंडेशन की जानिब से पिछले 3 वर्षों से कार्य खैर अंजाम दिए जा रहे हैं। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल मरीजों के अटेंडर्स यानी उनके तीमारदारों को हर दिन इफ्तार, रात का खाना और सहरी दी जा रही है। सरी मस्तान थाली के नाम पर ये नज्म किया गया। हर दिन 400 से 450 लोगों को खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं। गुज्जर बकरवाल ट्राइबल फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद असद चौहान का कहना है कि कोविड के दिनों में अस्पताल में इस कार्य खैर का सिलसिला शुरू किया गया। जरूरतमंद इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर रही हैं। डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जाकर वहां जेर तामीर हॉकी एस्ट्रोटर्फ का मुआयना किया। ताजीम अख्तर ने मुताल्लिका एजेंसी को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी।
पुंछ में اساتذہ को आधारशील पोर्टल के इस्तेमाल की तरबियत फराहम की गई। स्कूली तलबा के आधार लिंक रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़ी दीगर तफसीलात से वाकिफ कराया गया। 50 से ज्यादा टीचर्स ने यहाँ ट्रेनिंग हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पल्ली गांव के दौरे पर मकामी सरपंचों ने उनका शुक्रिया अदा किया। गांव में वज़ारत पंचायत राज की जानिब से एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ महकमों ने यहाँ अपने स्टॉल्स लगाए हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे यहाँ बड़ी तादाद में मुशाहिदा करने पहुंच रहे हैं। त्राल से चुरसू अवंतीपुरा तक की राब्ता सड़क अमलर और घाड़ीखल के मकाम पर खस्ताहाली का शिकार है, जिससे इन इलाकों में मुकीम आबादी को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक राब्ता सड़क पर PMGSY गुज़िश्ता 2 साल से काम कर रहा है। काम की सुस्त रफ्तारी से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा है और अब इस सड़क पर पानी जमा रहता है। लोगों को चलने फिरने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। उन्होंने सड़क पर फौरी तौर मैगडम बिछाने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता दिनों कुपवाड़ा जिले के लंगेट मावर के कई दीगर देहात में जबरदस्त ज़ालेबारी से फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। अखरोट की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा। मालिकान बागात ने सरकार से मुतालबा किया कि लोगों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुटानका हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत में चलाया जा रहा है। 5 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। स्कूली बच्चों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चों के वालिदैन ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कॉलेज की इमारत जल्द से जल्द तैयार की जाए। जयपुर में ट्राउट मछली की अफजाइश। अजमेर सिंह ने गर्म माहौल में ट्राउट मछलियों को पालने का कारनामा अंजाम दिया। माहिरीन ने कारोबार के नए मौके पैदा होने की जाहिर की उम्मीद। कुछ और अहम खबरें भी। खरगोन तशद्दुद मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी का मध्य प्रदेश जमीयत उल उलमा ने फैसला किया है। ईद के बाद मध्य प्रदेश जमीयत उल उलमा और सद्भावना मंच का वफ्द खरगोन का दौरा करेगा और मुतासिरीन के साथ इंतजामिया के अफसरान से मुलाकात करके जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। मध्य प्रदेश जमीयत उल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि खरगोन तशद्दुद मामले में हुकूमत और इंतजामिया ने कानून की बालादस्ती का निफाज करने के बजाय यकतरफा कार्रवाई की है, जिसकी मजम्मत की जाती है। हज 2022 के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन हज के कुरानदाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने भी रियासत के आज़मीन हज की कुरानदाजी को मुकम्मल कर लिया है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने मुंबई के साबू सिद्दीक मुसाफिर खाने में वाक़ दफ्तर में ऑनलाइन कुरानदाजी का इनेकाद किया। महाराष्ट्र हज कमेटी को मरकजी हज कमेटी की जानिब से 4874 नशिस्तों का कोटा फराहम किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को इस साल 11,192 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। हज 2022 के लिए MP के आज़मीन हज का किया गया कुरा। भोपाल स्टेट हज कमेटी में किया गया हज कुरा। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की निगरानी में किया गया हज कुरा। हज 2022 के लिए MP से 1780 आज़मीन हज का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब। ऑनलाइन कुरानदाजी में नाम आने पर आज़मीन हज ने किया खुशी का इजहार भी। हज 2022 के लिए MP से 3417 आज़मीन हज ने की थी दरख्वास्त। महरम के बगैर हज पर जाने वाली 16 खवातीन की सीट रिजर्व कैटेगरी से अलहदा करने के बाद किया गया कुरा। MP में 3401 दरख्वास्तों में से 1780 आज़मीन हज के लिए किया गया कुरा। ईद बाद आज़मीन हज की शुरू होगी तरबियत। वहीं जयपुर में हज 2022 के लिए कुरानदाजी। राजस्थान के सेक्रेटेरिएट में हुई कुरानदाजी। 2499 हज दरख्वास्त दहिंदगान के लिए कुरानदाजी। राजस्थान में 2072 सीटें अलॉट की गई हैं। हज कमेटी की जानिब से हज की पहली किस्त के लिए वक्त दिया जाएगा और हज दरख्वास्त गुजारों को पहली किस्त के तौर पर 81,000 रुपए जमा कराने होंगे। अंजुमन रायचूर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कलेरमठ के स्वामी और जमात इस्लामी हिंद के लीडर आसिमुद्दीन अख्तर मेहमानान खुसूसी रहे। दावत इफ्तार में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सभी मज़ाहिब और तबकात के लोगों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम समाज के लिए एक खुशाइन बात। कलेरमठ के स्वामी का बयान। रायचूर शहर भाईचारे और फ़िक़्र वार हम आहंगी के लिए शानदार मिसाल।
امیر مقامی جماعت اسلامی ہند رائچور محمد عاصم الدین اختر کا بیان۔ افطار پارٹیوں کے ذریعے اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی کوشش بنگلورو میں دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں کے جے نگر اسمبلی حلقے میں سماجی کارکن وزیر پاشا اور ان کے ساتھیوں نے دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ علاقے کے ہندو افراد بھی افطار میں شامل ہوئے۔ جمعیت العلماء ہند کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی کی صدارت میں تقریب منعقد ہوئی۔ سابق وزیر رام لنگا ریڈی، مقامی ایم ایل اے سمیہ ریڈی نے اس تقریب میں شرکت کی۔ میرٹھ کی شاہی عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ کی نماز کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں کووڈ کی پابندیوں کے سبب عید الفطر کی نماز شاہی عیدگاہ میں ادا نہیں کی جا سکی تھی، لیکن گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی عید کی نماز شاہی عیدگاہ میں روایتی انداز میں ادا کی جائے گی۔ امام شاہی عیدگاہ اور شہر قاضی میرٹھ کے مطابق عید کی نماز اور انتظامات کے تعلق سے ضلع انتظامیہ سے بھی سبھی پہلوؤں پر بات ہو چکی ہے۔ شاہی عیدگاہ میں نماز عید الفطر کو لے کر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مسلمانوں کو عید الفطر کی نماز میں مستعدی سے کام لینا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں پرامن ماحول قائم کرنے پر زور دیا جائے۔ جے ڈی یو ایم ایل سی خالد انور کا بیان۔ خالد انور نے کہا کہ مسلم تنظیموں نے بھی مسلمانوں کو امن و امان کا ماحول قائم کرنے اور کوئی چھیڑے تب بھی خاموش رہنے کی اپیل کی ہے۔ خالد انور نے کہا یہ ایک اچھی پہل ہے۔ خالد انور کے مطابق بہار کے لوگ ایک دوسرے کے مذاہب کی قدر کرتے ہیں، اس لیے یہاں تہواروں کے موقع پر اچھا ماحول رہتا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے بھی سخت حفاظتی انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناندیڑ میں عید کی شاپنگ عروج پر، شہر کے منیار گلی عرب گلی میں عید کی شاپنگ کے لیے لوگوں کا ہجوم۔ عید کی خریداری پر نظر آ رہا ہے مہنگائی کا بھی اثر۔ خبروں میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔